Hello students. Till now we have learnt about what is constructor and what are the types of constructors, and also we have seen the three types of constructor with the help of one program of each. So let us move to the next topic, that is constructor overloading in C++. So what is the meaning of overloading? The basic meaning of overloading is that in the space of one we can adjust two, three, four, five. We overload the things. Before this we have seen about the function overloading. So what we were doing in the function overloading is that we were making a function, एक फंक्शन बना रहे थे और उस पर उसी नाम का दो तीन फंक्शन बना रहे थे, बट वी आर पासिंग द डिफरेंट डिफरेंट आर्गूमेंट्स. सो ओवरलोडिंग का एक फंक्शन ओवरलोडिंग का एक सबसे अच्छा एग्जांपल है, सच एज वी आर making a function add, and we are sending here two values, integer type value, and again I am making a function name as add, and I am sending a three values, three parameters over it. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक नाम का दो फंक्शन बनाए हैं, and I am sending different types of values, or we can say that different number of values. So यहाँ पे इंटीजर फ्लोट ऐसा भी हो सकता है, या और इंटीजर एंड अगेन डबल डबल. सो ये नंबर ऑफ पैरामीटर्स एंड टाइप्स ऑफ पैरामीटर्स दोनों पे डिपेंड करता है. सो लेट अस सी दैट व्हाट आर द डेफिनेशन ऑफ कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग एंड व्हाट इज कंसेप्ट बिहाइंड इट. So in C++ we can have more than one constructor in a class with same name. एक नाम से एक से ज़्यादा कंस्ट्रक्टर हम लोग बना सकते हैं. So as long as each has a different list of arguments. So जितना भी अलग अलग लिस्ट ऑफ आर्गूमेंट्स है, जहाँ जैसे अभी यहाँ पे हम लोग एग्जांपल ऐड का किए थे कि ऐड में पहले दो एग्जांपल था एंड सेकेंड टाइम वी वर इंसर्टिंग थ्री पैरामीटर्स. So this concept is known as constructor overloading, and it is quite similar as function overloading. So it is basically similar to the function overloading. We can see it with the help of example. And overloaded constructor essentially have the same name and the name of the class. So we know from the basics of constructor that the name of the constructor must have to be its name must have to be the same as that of the class, and different types of arguments. So constructor is called depending upon the number of types of arguments passed, and while creating the object, arguments must be passed to let compiler know which constructor needs to be called. तो जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो हमें वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है कि दैट वी आर पासिंग द ऑब्जेक्ट ऑफ 0 पैरामीटर और 2 पैरामीटर्स, और अ कंस्ट्रक्टर ऑफ 2 पैरामीटर्स विथ इंटीजर टाइप, और अ कंस्ट्रक्टर ऑफ 2 पैरामीटर्स ऑफ फ्लोट टाइप. सो जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो वहाँ हमें डिफाइन करना पड़ता है. So let us see the example of a copy constructor so that the idea behind it would be much more clear. So here is an example of copy constructor overloading. So what we are doing that here is a class name as construct. We are creating a class whose name is construct, और इसके अंदर public में हम we are inserting or we are declaring a variable known as area. So area the डेटा टाइप ऑफ एरिया इज़ फ्लोट. तो फ्लोट एरिया नाम का एक हम लोग डिक्लेयर कर दिए हैं एक वेरिएबल, एंड आफ्टर दैट आई एम क्रिएटिंग अ कंस्ट्रक्टर हुज नेम इज़ कंस्ट्रक्ट. तो कंस्ट्रक्ट क्लास का नेम और कंस्ट्रक्टर का नेम सेम होता है, इसलिए कंस्ट्रक्ट नाम का एक हम क्रिएट किए हैं कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर का कोई पैरामीटर्स नहीं है, देयर इज़ नो पैरामीटर ऑफ दिस कंस्ट्रक्टर. सो इस जब व्हेन वी विल कॉल दिस कंस्ट्रक्टर दैट इज़ डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सो द एरिया विल बी ज़ीरो. सो जब ये कॉल होता है तो इस पर क्या होगा, एरिया का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा. एंड द सेकेंड कंस्ट्रक्टर इज़ कंस्ट्रक्ट इंट ए इंट बी. तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर फर्स्ट कंस्ट्रक्टर एंड द सेकेंड कंस्ट्रक्टर दोनों दो कंस्ट्रक्टर का नेम सेम है, बट वी कैन सी दैट द नंबर ऑफ पैरामीटर्स इज चेंजिंग इन बोथ द केसेस. सो पहले वाले में जीरो का पैरामीटर्स है, एंड द सेकेंड वाले में दो पैरामीटर है, इंट ए एंड इंट बी. तो यहाँ पे एरिया कैसे कैलकुलेट हो रहा है, एरिया इक्वल टू ए स्टार बी, और वी कैन से दैट एरिया इक्वल टू ए क्रॉस बी. तो अब क्या करेगा, ये रिटर्न क्या करेगा, जो ए वैल्यू है एंड बी वैल्यू है, तो ए और बी का मल्टीप्लाई करके कि जो भी रिजल्ट आएगा वो एरिया पे स्टोर करेगा. फर्स्ट वाले में क्या होता है, एरिया ज़ीरो होगा, और सेकेंड वाले में क्या होगा, एरिया दोनों के मल्टीप्लीकेशन में होगा. अब एक वी आर क्रिएटिंग अ फंक्शन
सो उस पर क्या कर रहा है, ओनली वी आर डिस्प्लेइंग द वैल्यू ऑफ द एरिया, यहाँ पे केवल हम एरिया का वैल्यू डिक्लेयर करें। अब नाउ द मेन फंडा बिहाइंड दिस कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग कम्स फ्रॉम दिस मेन पार्ट। तो अब ये मेन इंट मेन में क्या हो रहा है, सबसे पहले कि we are constructing we are declaring an object, or we can say that we are creating an object of class constructor। construct class का एक object O बनाया। तो अब ये O बनाया तो ये कौन से कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, ये उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा जिस पे कोई भी पैरामीटर नहीं है। दैट मीन्स इट विल कॉल टू द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स इट विल गो टू दिस वन एंड द वैल्यू ऑफ एरिया इज 0। तो इस वैल्यू के लिए एरिया इज 0 एंड अगेन द इन सेकेंड टाइम इट इज कंस्ट्रक्टिंग वी आर डिक्लेयरिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ कंस्ट्रक्ट टाइप। सो इस पे वी आर सेंडिंग द वैल्यू 10 एंड 20 टू द कंस्ट्रक्टर। सो अब ये कंस्ट्रक्टर जब इसको इस वाले को कॉल करें तो ए का वैल्यू 10 एंड बी का वैल्यू 20। सो एरिया का वैल्यू क्या होगा, 10 क्रॉस 20 दैट इज इक्वल टू 200। तो इस वाले में वैल्यू हो जाएगा O2 में 200। सो नाउ वी आर डिस्प्लेइंग O डॉट डिस्प्ले। तो O डॉट डिस्प्ले, डिस्प्ले क्या कर रहा है, एरिया। तो O का एरिया कितना था, 0, तो यहाँ पे आउटपुट में 0 आ गया। एंड अगेन वी आर डिस्प्लेइंग O2 डॉट डिस्प्ले। O2 का डॉट डिस्प्ले में क्या होगा, एरिया प्रिंट का है, तो O2 का एरिया कितना था, 200। सो इट विल डिस्प्ले 200। सो दिस वॉज द फंडा बिहाइंड द constructor overloading, that having two constructor or more than two constructor with same name but having different parameters. So let us see about one more thing, that is destructor। तो डिस्ट्रक्टर क्या होता है, ये डिलीट कर देता है जितना भी कंस्ट्रक्टर जो नया नया ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करता है उसे डिस्ट्रक्टर डिलीट करता है। सो लेट अस सी दैट डिस्ट्रक्टर इज अ मेंबर फंक्शन विच डिस्ट्रक्ट्स और डिलीट्स एन ऑब्जेक्ट। जितना भी ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्टर क्रिएट करता है तो डिस्ट्रक्टर उसे डिलीट करता है। तो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ डिस्ट्रक्टर। सो व्हेन अ डिस्ट्रक्टर कॉल कब किया जाता है, सो अ डिस्ट्रक्टर फंक्शन इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली व्हेन द ऑब्जेक्ट गोज आउट ऑफ स्कोप। स्कोप क्या होता है, एक ब्लॉक होता है जैसे दो पैरेंथेसिस के बीच का, ये इसे बोलते हैं हम एक स्कोप। सो जब भी ये स्कोप एंड होता है तो द डिस्ट्रक्टर इज ऑटोमेटिकली कॉल्ड। सो स्कोप एंड होने का क्या क्या टाइमिंग्स है या फिर क्या क्या इसका पॉसिबिलिटीज़ है। सो द फर्स्ट वन इज़ द फंक्शन एंड्स। किसी भी एक फंक्शन का जब एंड होता है डिस्ट्रक्टर कॉल होता है। द सेकेंड वन इज़ द प्रोग्राम एंड्स। सो वेन एवर अ प्रोग्राम एंड्स द डिस्ट्रक्टर इज कॉल्ड ऑटोमेटिकली। द थर्ड वन इज़ अ ब्लॉक कंटेनिंग लोकल वेरिएबल एंड्स। So when a block or a function is ending with local variables, and when after the ending of that function, this the constructor the destructor will be called automatically. And the last one is a delete operator is used. So we will see this delete operator later on, but there are some operators known as delete operator, which is used to delete the variables or the data types. So how destructors are different from a normal member function. So destructor have same name as that at the class preceded by a tilde. तो ये भी जैसे कंस्ट्रक्टर में कंस्ट्रक्टर वाज हैविंग द सेम नेम ऑफ द क्लास नेम के जैसा था। जैसे कि अगर एक ऐड नाम का वी आर हैविंग अ क्लास और कंस्ट्रक्टर बनाना तो ऐड करके व्हाट वी वर डूइंग, वी वर ओनली इंसर्टिंग द पैरेंथेसिस। तो अभी अगर डिस्ट्रक्टर अगर बनाना है तो ऐड सेम एज कंस्ट्रक्टर, बस आगे पे एक ऐसा टिल्ड, लेकिन आगे पे क्या होगा कि ऐसा एक टिल्ड साइन हो जाएगा, ये टिल्ड साइन फॉर्म हो जाएगा। सो डिस्ट्रक्टर डोंट टेक एनी आर्गूमेंट एंड डोंट रिटर्न एनीथिंग। सो ये भी रिटर्न कुछ नहीं करता एंड वी डू नॉट स्पेसिफाई एनी टाइप ऑफ आर्गूमेंट इन द डिस्ट्रक्टर। So that's all for this lecture. We will study more about the destructor and with an example in the upcoming lectures. Thank you.